Well, a bomb is going to be dropped on the 11th of March this year by Vivek Agnihotri, and before the bomb drops, as they say, we will explore the lull in the storms. I look at the eyes, look at eye in eye with all of you, and talk about the issues that Kashmir Files explores. And I'm not going to unravel the truth. It's for the panelists to unravel the truth. Joining us here would be filmmaker, national award-winning filmmaker, best-selling author, and a public intellectual, and somebody I look up to in very high esteem, Mr. Vivek Agnihotri. His popular film, Buddha in a Traffic Jam, dealt with the theme of urban Naxalism and portrayed the sinister nexus between the Naxals, media, NGO, and academia. Currently, he's making a film on the ethnic cleansing of Kashmiri Pandits titled The Kashmir Files, and writing a book on Indian politics from the time period of Lal Bahadur Shastri's death till the emergency, 1966-1976 period. Ladies and gentlemen, we will be coming up with Unraveling the Truth, The Kashmir Files. The Kashmir Files, as I said, is a film by Vivek Agnihotri, and that's exactly why I introduced him in the beginning. We get set the motion ready, Unraveling the Truth, The Kashmir Files. I'd introduce Vivek to you, but I want to talk about, apart from being a prolific filmmaker, Vivek is someone who's a passionate public speaker on a variety of issues, and I'm personally a fan of Vivek's work, and he's spoken on reputed platforms like TEDx, Harvard University Conclave, World Hindu Congress, among others. He's also given and delivered speeches at many top universities, including Purdue, Ohio State University, Oxford, and several IITs and IMs. Ladies and gentlemen, let's welcome Vivek Agnihotri, National Award winner, filmmaker, best-selling author, and a public intellectual who's going to drop a bomb with Kashmir Files on the 11th of March. Thank you, Vivek, for being with us this evening at Earth, a Culture Fest. We have with us joining on the internet someone that I do not even have the audacity of speaking about, because when it comes to acting, he's possibly one of the final words for me. A gentleman who's a prolific stage actor, a film actor who has actually been entrancing audience over the past 35 years, playing a plethora of roles, interesting, awarded, internationally acclaimed. Ladies and gentlemen, an actor's coach. Joining us is Anupam Kher. Thank you. We also have with us a very young and acclaimed actor, Darshan Kumar, who shot to fame with Mary Com alongside Priyanka Chopra in 2014. He was widely acclaimed for a plethora of performances. In fact, the film called NH10, which was absolutely fabulous, and I loved your work in that film. My God, the villain. Yes, with Dipti Nawal, who was also quite surprising in that film. Darshan has actually acted in Kashmir Files. I didn't have an opportunity to audition also. That's not fair, Vivek. But very well done, Vivek, for putting all these acts together. And we have with us Aditi Tyagi, who holds the position of a news anchor with Zee News and a very, very popular presenter. She's gained more than 19 years of experience in the field of journalism. And here we have Aditi in conversation with these men on the net and off the net, on the stage, celebrating 75 years of Azadi Ki Amrit Mahotsav at the last panel of the day one of Earth, a Culture Fest and a Culture Quest. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. तो नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी, और कश्मीर का जिक्र जब आता है तो जहन में आती है जन्नत, खूबसूरती, रोमांस, बॉलीवुड, या फिर जन्नत को जहन्नुम बनाने वाला आतंकवादी, हाईली मिलिट्राइज्ड जोन, या फिर अटैक्स से जुड़ी खबरें। लेकिन जब हम द कश्मीर फाइल्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें घाटी की कौन सी तस्वीर दिखाई गई है, बड़ा सवाल जहन में ये आता है। और यही समझने और समझाने के लिए हमारे साथ अनुपम खेर जी, हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन,
विवेक अग्निहोत्री जी, जिन्होंने इसे डायरेक्ट किया है, और दर्शन कुमार, यंग एक्टर। अनुपम जी, आपके साथ मैं इस डिस्कशन की शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि पुष्कर नाथ का किरदार आप निभा रहे हैं इस मूवी में, जो कि आपके पिताजी का नाम भी है और कश्मीरी पंडित आप खुद भी हैं। पुष्कर नाथ द कश्मीर फाइल से अपनी ऑडियंस को क्या कहना चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैंने विवेक से कहा कि इस कैरेक्टर का नाम क्या है, कश्मीर फाइल्स की जो स्टोरी बताने आए थे मुझे, तो उन्होंने बोला पुष्कर नाथ। अब विवेक मेरे पिताजी को जानते थे काफी सालों से, और वो मेरे पिताजी का जो उनकी तरबियत थी, जिस तरह के इंसान थे, उनको भी जानते थे। तो पुष्कर नाथ जी कश्मीरी, एक साधारण, मासूम और एक अच्छे दिल के कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू को रिप्रेजेंट करते थे। एक्चुअली माय फादर वाज द सिंपलेस्ट मैन ऑन अर्थ, जिनको 1948 में जब पाकिस्तान से कबायली आए थे और उन्होंने बारामुल्ला तक वो आ गए थे, तो मेरे फादर नौकरी करने के लिए शिमला आए थे, मगर हमारे दादाजी, बाकी सब लोग जो थे वो श्रीनगर में रहे, कश्मीर में रहे, अलग अलग जगह पे, सोपोर पे, हंदवारा में, बारामुल्ला में, श्रीनगर में। और बट वी हैड अ होम देयर। और 32 साल से कश्मीरी लोगों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो एक एक्सोडस घटना घटी है, जहाँ 4-5 लाख कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी पंडित 19 जनवरी 1990 को खदेड़कर, मारकर, धमकाकर, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करके, बहुत सारी जानें गंवाकर निकाल दिए गए थे, और 32-31 साल तक किसी ने इस बारे में बात नहीं की है। आज छोटे छोटे मुद्दों पर हमेशा ट्विटर के 19 तारीख को ट्विटर पे हम ट्रेंड करते हैं अब पिछले 4-5 सालों से। तो मैंने कश्मीर फाइल्स देखी है, और कश्मीर फाइल्स की स्क्रिप्ट भी जब मुझे सुनाई थी, तो आई थिंक सच्चाई के बहुत करीब, और सच्चाई, इस बात का फक्र नहीं है कि सच्चाई के बहुत करीब है, इस बात का दुख है कि सच्चाई बताने में 32 साल लग गए। और ये पुष्कर नाथ जैसे हजारों, लाखों, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कश्मीरी जाकर बसने वालों की कहानी है। और मेरे लिए ये फिल्म नहीं है, बल्कि एक फिल्म से बढ़कर है। मैंने इसको एक फिल्म के तरीके से बतौर एक्टर निभाया भी नहीं, मैंने इसमें कोई क्राफ्ट इस्तेमाल नहीं किया। मैं उस दर्द को अगर पर्दे पर ला सकता था तो मुझे लगता था कि मेरा काम हो गया। एंड शायद वो दर्द दुनिया तक पहुंचेगा 11 मार्च को, और इसके बारे में मुस्कुराते हुए बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। जब आप मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो मैं सोच रहा था मैं मुस्कुराऊं, नहीं मुस्कुराऊं, कैसे बात करूं, बिकॉज जब भी ये बात आती है तो बहुत सारी चीजें जिंदगी में घूमती हैं, बहुत सारी चीजें मन में घूमती हैं, और विवेक इसकी पुष्टि करेंगे कि इसके हर सीन में मैं रोया हूं, नॉट एज एन एक्टर बट एज ए कश्मीरी पंडित, क्योंकि सच्चाई के बहुत करीब। और हर सीन के अंत में आके विवेक ने रोते हुए मुझे गले लगाया है। शायद विवेक ने इसको ज्यादा जिया है उतने दिनों में, उतने सालों में, बिकॉज वो अमेरिका में काफी लोगों पर को मिले थे। बट दिस इज मोर देन जस्ट परफॉर्मेंस, दिस इज मच मोर देन जस्ट फिल्म, दिस इज अ ट्रूथ विच इज फाइनली बीइंग टोल्ड। जैसे कि अनुपम जी ने कहा, ये फिल्म नहीं, ये इतिहास है। इतिहास का काला पन्ना जो है वो ये फिल्म है। आपकी फिल्म का डायलॉग है कि कितनी अजीब बात है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, लेकिन यहाँ सब शुतुरमुर्ग बन चुके हैं। तो लंबे अरसे तक सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि भारत भी कहना चाहिए कि इससे, इस दर्द से अनजान रहा। कश्मीरी पंडितों का दर्द, उनकी वेदना, जो जुल्म उन पर हुए, और जैसे कि मैंने कहा इतिहास का काला पन्ना, आपने अपनी फिल्म में उस काले चैप्टर को किस तरह से दिखाया है, क्योंकि जैसे अभी अनुपम जी ने कहा ये एक वास्तविकता है, ये एक सच्चाई है। तो मैं इसके पहले जवाब दूं आपके सवाल का, मैं दो छोटी सी बातें मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं। आपने जब खेर साहब को इंट्रोड्यूस किया था तो आपने कहा कि आपके पिताजी का नाम पुष्कर नाथ था और आप कश्मीरी पंडित हैं, इसलिए ये फिल्म, ऐसा नहीं है। वो एक बहुत इंडिया के इस वक्त सर्वोच्च कलाकार हैं, इज़ अ ग्लोबल एक्टर, और बड़ी उनकी जहाँ जाता हूँ इज्जत है। अगर वो बहुत अच्छे एक्टर नहीं होते तो नाम पुष्कर नाथ होता और वो कश्मीरी पंडित होते तो क्या फ़ायदा होता। तो पहले तो मैं ये क्वालिफिकेशन, मेरे दिमाग में ये आया भी नहीं कि वो कश्मीरी पंडित है इसलिए लेना चाहिए।
मैंने जो कैरेक्टर सोचा था वो मुझे लगा कि उसको अनुपम खेर ही निभा सकते हैं, वो पहला थॉट था, उसके बाद फिर आगे की बात हुई। दूसरी बात जो आपने कहा कि ये शुतुरमुर्ग वाली जो बात है, ये सत्य है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पर हम शुतुरमुर्ग हैं इसलिए कि देखिए हम जाने अनजाने में ना हम लोगों के दिमाग को ऐसा प्रोग्राम कर दिया गया, वायर कर दिया गया है कि हमें लगता है ये कोई पुरानी घटना है 30 साल पुरानी। आपने भी बोला ये इतिहास का एक पन्ना है, ये इतिहास का पन्ना नहीं है, ये वर्तमान का पन्ना है। अभी पिछले हफ्ते कुछ दिनों पहले एक स्कूल में घुस के टेररिस्ट लोगों ने आइडेंटिफाई किया और उसमें से जो नॉन इस्लामिक लोग थे, जो हिंदू टीचर थी और एक और जो थे, उनको पॉइंट ब्लैंक बच्चों के सामने गोली मार दी। एक बिहारी को गोली मार दी। अभी रोज 4-5 टेररिस्ट मारे जाते हैं रोज। वहाँ पे आप देखिए, चाहे हिंदू मुस्लिम नहीं, जो मुस्लिम लोग भी हैं जो कि टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वह सिख लोग जो आवाज़ उठाते हैं, 36 सिखों को भी तो मारा था। और जो नादी मार्ग का हुआ था वो तो 2003 में हुआ था। आज भी सब जगह चल रहा है। जो ये शाहीन बाग हुआ था वो क्या था? वो तो वर्तमान है। वो शाहीन बाग पूरा इस्लामिक जो वहाँ का टेररिज्म है उसका मॉड्यूल है। ये जो अभी जिहाद और हिजाब और नकाब की बुरके की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इट्स अ पार्ट ऑफ एग्जैक्टली सेम थिंग, कार्बन कॉपी हैपेंड इन कश्मीर। दैट्स हाउ इस्लामिक टेररिज्म केम इन दिस थिंग। तो ये इतिहास नहीं है, इस मुगालते में मत रहिए। और मेरी फिल्म भी जो है वो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल नहीं है, वो 2021 की फिल्म है। जो रोल दर्शन प्ले कर रहे हैं वो लड़का आज का स्टूडेंट है, वो आज के पर्सपेक्टिव में फिल्म है। तो आप ये मत सोचिए आप फिल्म देखने जाएंगे तो आपको कोई हिस्ट्री का एक चैप्टर दिखाया जाएगा, सब कुछ नहीं है। ये आज की मॉडर्न यूथ की फिल्म है। इसीलिए जो खेर साहब ने कहा कि मैं हर सीन के बाद रोता था, मैं जिसने फिल्म देखी है अमेरिका में, वो हर व्यक्ति खेर साहब के सीन, जो कैरेक्टर है उनका पुष्कर नाथ का, उस सीन्स के बाद रोता था। इसलिए क्योंकि ये सिर्फ कश्मीरियों की कहानी नहीं है। जब आप देखेंगे आपको अरे तो मेरे पिता की कहानी है, अरे ये तो मेरी कहानी है, ये इमोशन तो मेरा है, मेरे पिताजी का भी ये इमोशन है। ये हर भारतवासी की कहानी है और आज की कहानी है। दर्शन कुमार, आपने कृष्णा पंडित का किरदार निभाया, कितना चैलेंजिंग ये किरदार आपके लिए रहा, और ख़ास तौर पे जब आप मिथुन दा, अनुपम जी, पल्लवी जी, लिस्ट लंबी है, उस लीग में जाकर आपको ये किरदार निभाना था। एक्चुअली कृष्णा पंडित एक स्टूडेंट है और वो उसकी रुचि ज़्यादातर पॉलिटिक्स में है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है वो, कि उसको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि उसके लाइफ में इतना कुछ बीत चुका है। वो क्वेश्चंस का आंसर चाहता है और उसको डिफरेंट तरीके से वो आंसर्स मिलते हैं जिससे वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता और बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ में। सो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कैरेक्टर था मेरे लिए। मुझे याद है मेरी पहली मीटिंग पल्लवी मैम के साथ, जब उन्होंने मुझे जो विवेक सर ने और पल्लवी मैम ने जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर जो रियल इंटरव्यूज़ लिए थे, जिनके साथ 1990 में जो घटना घटी और जो उनके साथ बीता, जब मैं वो वीडियोस देख रहा था मैं नम हो गया। मैं काफ़ी देर तक कुछ एक वर्ड भी नहीं बोल पाया। और जब मैं कैरेक्टर के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो बार बार मुझे वैसे ही वीडियोस देखने पड़ते थे क्योंकि मैं वो जो हुआ वो उसको अच्छे और तरीके से जानना चाहता था। तो हर बार मैं मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा सच में हुआ और हम लोगों को अभी तक पता नहीं है। वो हर बार मुझे चुभता था। और जब ये कैरेक्टर प्ले किया तो जब तक मैंने प्ले किया, जब तक हम शूट कर रहे थे, हर दिन मुझे वो एक सोते वक्त भारीपन रहता था सीने पे कि ये रियल में हुआ और हमें हम सब इससे वाकिफ़ नहीं थे। सो ये तो पहला रहा कि प्रिपेयर करने में बहुत ही ये टफ रहा मेरे लिए, मेंटली, फिजिकली और हर तरीके से। उसके अलावा वर्किंग विद अनुपम सर, मिथुन दा, पल्लवी मैम, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी, बिकॉज मैं सर की इन सब की फिल्में देख कर बड़ा हुआ हूँ और उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया एज एन एक्टर। और जब शूट कर रहे थे तो एक फैमिली की तरह थे। मुझे नहीं लगता कि हमें ये भी याद है कि हमारा कोई मेकअप रूम था या कोई वैनिटी है हमारे लिए। हम एक ही जगह बैठे रहते थे, घंटों सिर्फ रिहर्सल्स करते थे, सीन्स पे बातें करते थे। तो ये मेरे लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। और ये सर का, इन सब का बड़कपन है, हमारे लिविंग लेजेंड्स का, कि मुझे इतना कंफर्ट जोन दिया कि मैं अपना बेस्ट दे पाया।
तो मैं फील करता हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे विवेक सर के साथ, मिठुन दा, अनुपम सर के साथ और वल्लभी जी और जितनी भी कास्ट थी हमारी, सबके साथ ये फिल्म करने का मौका मिला। अनुपम जी, जो दर्शन का डायलॉग है, उसी के साथ इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। उनका डायलॉग ये है कि ये जब मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध बांध कर घसीटा जाएगा, रेप चार्जेस लगाए जाएंगे, तब सताए लोग क्या करेंगे? गन्स नहीं उठाएंगे तो क्या आरती उतारेंगे? अगर, क्योंकि अभी विवेक जी ने मौजूदा हालात का जिक्र किया, तो मौजूदा हालात में ये और भी ज़्यादा रेलेवेंट लगता है, प्रासंगिक लगता है, ख़ास तौर पे हिंसा के जस्टिफिकेशन के लिए जो रीजनिंग दी जाती है। लेकिन हमने ये देखा कि पंडितों ने ऐसा कुछ नहीं किया, और टू एन एक्सटेंट कह सकते हैं कि शायद इसीलिए 3 दशकों तक उनका दर्द, उनकी वेदना, उन पर जो जुल्म हुआ, वो सुर्खियों में नहीं आ पाया। नहीं, सिर्फ इस वजह से नहीं आ पाया कि उनका दर्द, उनकी वेदना, या उन्होंने हथियार नहीं उठाया। ऑफ कोर्स हथियार नहीं उठाए बिकॉज वो हमारे डीएनए में नहीं है। हम पढ़ाई पे, विद्या पे बिलीव करते हैं और हम ढूंढते हैं कोई ना कोई तरीका कि जीने को आगे बढ़ाना तो है, अब जिंदगी तो जीनी है। मगर ये एक साजिश है मेरे हिसाब से। ये केवल एक ऐसा नहीं है कि छुपा दिया गया इसको कारपेट के अंदर, ये आगे बढ़ने ही नहीं दिया। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो छोटी छोटी चीजें एक्सेप्ट कर लेती है, उन्होंने भी इसकी तहकीकात करने का एक्सेप्ट नहीं किया। सो हम सब जिम्मेदार हैं, सरकार, लोग, पत्रकार, जिन्होंने इसको, एंड वी शुड ऑल फील अशेम्ड एंड गिल्टी अबाउट इट, कि इतना बड़ा स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा एक्सोडस, सबसे बड़ा कांड हुआ और हमने इसको छुपा के रखा या छुपा के रखने दिया। और विवेक की बात बिल्कुल सही है कि ये आज की कहानी है और ये आज तक चला आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि जब भी कोई इंसान किसी बात को डिफेंड करने की कोशिश करता है या किसी बात को जोर से बोलने की कोशिश करता है, तो उसको बता दिया जाता है कि आप किसी वर्ग के खिलाफ हो, आप किसी जाति के खिलाफ हो, किसी धर्म के खिलाफ हो, आप हिंदुत्व के हो, आप हिंदूवादी हो, आप पंडित हो, आप कश्मीरी पंडित हो, ताकि वो अपनी आवाज चुप कर ले, ताकि वो घबराहट के मारे चुप हो जाए। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो सब में विश्वास रखता हूं। वो अलग बात है। कश्मीर में इस प्रॉब्लम में केवल हिंदू तो बहुत मात्रा में मारे गए और रेप हुआ, और सिर्फ हिंदू ही बाहर निकले गए, बट बहुत सारे मुसलमान भी मारे गए। आज भी पुलिस इंस्पेक्टर, हवलदार, जैसा कि विवेक ने बोला, कि मारे जा रहे हैं, मगर इसको छुपा के रखा गया है। और ये फिल्म जो है आपको सिर्फ ना केवल उस ट्रेजेडी से आगाह करेगी, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं कचोटेगी, कि जो कि रिएक्शन अमेरिका में आया भी है कि मुझे क्यों नहीं पता था अब तक ये हुआ। और दर्शन के साथ मैं एक सीन कर रहा था, और दर्शन और मेरा, उसने मुझे गले लगाना था। मैं बार बार रोने की बात इसलिए करता हूं क्योंकि हिंदी फिल्मों में कोई रोना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, और एक्टर को सिखाया जाता है कि कैसे बिना ग्लिसरीन के रोना चाहिए, और लगता है कि रोने की एक्टिंग की तो कमाल की एक्टिंग की है। मगर नाउ दर्शन इज नॉट ए कश्मीरी पंडित, नीदर हैज बीन पार्ट ऑफ दैट होल थिंग, बट उसको मेरी वेदना देखकर, मेरे ग्रैंडसन का रोल करता है वो इस फिल्म में, वो फपक के रोने लगा, बिकॉज कहीं ना कहीं उसको अपनी त्रासदी, अपनी ट्रेजेडी किसी ना किसी एंगल से नजर आई, जो कि एक्सप्लॉयटेशन की है। एज एन एक्टर ही मस्ट हैव रियलाइज कि मैं बहुत सालों से काम ढूंढ रहा हूं, कहीं ना कहीं ऐसा होता है। तो जरूरी नहीं कि उस मुद्दे पर ही लेकर आपको आइडेंटिफिकेशन होती है। ऑडियंस विल रिएक्ट टू इट फॉर पुष्कर नाथ पॉइंट ऑफ व्यू, एक खास किस्म का, एक समाज में जो एक किस्म की इंटॉलरेंस दिखाई देती है, उस सब के बारे में इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म। और ये फिल्म जो है इसलिए भी देखनी चाहिए क्योंकि कभी कभी जख्म जो है ना, उनको खुले रखना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को नजर आए। आप नहीं तो छुपा के रखते हैं, आपको हड्डी टूट जाती है तो आप अंदर छुपा के रखते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो द वुंड्स to the people so that they feel guilty about it, and it's important for people to feel guilty. आने की बात कर रहे हैं, आपने बहुत विविडली डिस्क्राइब किया सब कुछ, क्योंकि मौजूदा हालात का जिक्र अभी विवेक जी ने भी किया और आप भी कर रहे हैं अनुपम जी। इतना बड़ा ह्यूमैनिटी का क्राइसिस हुआ, 4 से 5 लाख कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकाल दिया गया,
लेकिन तब संविधान खतरे में नहीं आया, तब इस देश में लोकतंत्र भी खतरे में नहीं आया। आज हिजाब पर लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं या फिर ये वही साजिश आपको लगती है जिसका जिक्र अभी आपने कुछ सेकंड्स पहले किया? लोगों के डबल स्टैंडर्ड बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। उनका खोखलापन अभी और सामने नजर आने लगा है। ये चुप हो जाते हैं जब इस तरह की कोई बात आती है, वरना ये झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं हर किस्म के साथ, हर किसी के सामने। प्रॉब्लम क्या होती है कि अभी कश्मीर फाइल्स पे बात कर रहा हूं मैं, पर मैं इसको अगर मैं आज के मुद्दे से जोड़ूंगा तो दैट विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन द कश्मीर फाइल्स, एंड आई वांट टू फोकस ओनली ऑन कश्मीर फाइल्स बिकॉज एज ए कश्मीरी पंडित, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमें बहुत सालों बाद मौका मिला है इस ट्रेजेडी पर, इस त्रासदी पर, इस इवेंट पर बात करने का, और एक फिल्म सामने आने वाली है। बहुत कोशिश की जाएगी और हो भी रही है कि एक पिक्चर किसी ना किसी तरीके से, अभी कुछ लोगों ने तो इसके रिव्यूज ऑलरेडी लिख दिए होंगे कि प्रोपोगेंडा फिल्म है, ये फिल्म ऐसा नहीं हुआ था, काफी तो अभी तक बात कर रहे हैं, पर ऐसा होना नहीं चाहिए और ना ही ऐसा होने देंगे। ऑफ कोर्स है डबल स्टैंडर्ड्स, और हर किस्म के लोगों में डबल स्टैंडर्ड्स। एक पत्रकार ने तब बोल दिया था जब ये हादसा हुआ था कि कश्मीरी पंडितों के साथ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि वो सारी नौकरियां जो हैं वो अपने कब्जे में ले रहे हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो मेन प्लम जॉब्स उनको मिल जाते हैं, पत्रकार ने। सो द पॉइंट इज कि आज के मुद्दे से जोड़ना विल बी टेकिंग अवे फ्रॉम द इंपॉर्टेंस ऑफ, अगेन फिर वो ऐसा लगेगा कि अरे यार फिर इस मुद्दे को कश्मीरी पंडितों के मुद्दे से हटा के ले लिया गया है। और विवेक ने इस फिल्म को बहुत ही ब्यूटीफुली बखान किया है। ब्यूटीफुल वर्ड भी ठीक नहीं लगता है, इसको बहुत दिल से जोड़ा है, और आज के आधुनिक भारत से जोड़कर जब आप फिल्म देखेंगे, जो दर्शन जिसका एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, या जो पल्लवी जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, you will see the double standards of people on 70 mm screen with stereophonic sound. That is the magic of cinema, and that's the magic of Kashmir Files. विवेक जी, आर्टिकल 370 जा चुका है, 35A भी अब नहीं है, लेकिन आपने इस फिल्म की ज़रूरत महसूस की। जो भी आपको इस वक्त देख और सुन रहे हैं वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि फ़िल्म किसी और डॉक्यूमेंट्री से, किसी और इंटरव्यू से, या इससे पहले जो फिल्म आई है उनसे कैसे अलग है? पहली बात तो इस विषय में जिस तरह की फिल्म है कई लोगों ने बनाई हुई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है, तो उसके बारे में ये एक अलग तरह की फिल्म है। देखिए ये रेगुलर फिल्म जैसी नहीं है, तो इसलिए बड़ा डिफ़िकल्ट है इसको स्पेसिफाई करना। पर हाँ, जब मैं विदेशों में जाता हूँ और जब यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ तो भारत की एक आध फिल्म का जिक्र बहुत करते हैं लोग। और पर प्रॉब्लम ये है कि वो जो एक सेलिब्रेटेड हैदर जो फिल्म थी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ ग्रेट क्राफ्ट्समैन एंड उसमें जुड़े लोग, लेकिन मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो एक पक्ष को दिखा रही थी। वो 1990 के ही पीरियड में सेट है फिल्म, लेकिन वो फिल्म टेररिज्म को जस्टिफाई कर रही थी कि भाई ये सताए हुए लोग हैं, इसलिए ये बंदूक उठाते हैं, इसलिए इन्हें माफ़ कर देना चाहिए, और उनको जो सताने वाले जो लोग हैं वो आर्मी है, स्टेट है, आर्मी है जो उठा ले जाती है, इसलिए ऐसा होता है। अब वो एक पक्ष की थी, 1990 के दौरान फिल्म थी, और उसमें ये जेनोसाइड जो हुआ कश्मीरी हिंदुओं का, उसका जिक्र तक, मतलब आयोटा ऑफ जिक्र भी नहीं था उसमें। तो उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं पूछता, ये कहाँ से इंस्पायर्ड हुई, ये क्यों बनाई, क्या हुआ। मुझसे सब लोग कहते हैं कि भाई ये आपने फिल्म क्यों बनाई, तो मेरा ये जवाब होता है कि भाई ये क्यों नहीं बनाना चाहिए था, नहीं, ये लोगों को सवाल ही क्यों उठ रहा है। जब कोई एक लव स्टोरी बनाता है तो कोई नहीं पूछता कि आपने क्यों बनाई है। तरह तरह की फिल्में आती हैं, कोई नहीं कहता आप ये फिल्म आपने क्यों बनाई है। पर मुझसे ये हमेशा क्यों पूछा जाता है आपने फिल्म क्यों बनाई है। और जिन लोगों ने झूठे इतिहास पे फिल्म बनाई, झूठा इतिहास लिख दिया, जो डॉक्यूमेंट कर दिया कि भाई वहाँ तो टेररिस्ट इसलिए बनते हैं कि आर्मी उनको सताती है, एक झूठा डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, और सबने कहा वाह क्या इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव फिल्म है। तब तो किसी ने नहीं पूछा ये फिल्म आपने क्यों बनाई है। और जब मैं एक सत्य जो कि 4 साल हमने पूरे गलियारों में जाके जितने फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स, ये भी नहीं कि आज के लोग बोल रहे हैं,
वो लड़का जिसकी माँ को काट के झेलम में फेंक दिया, वो औरत जिसके पिता के टुकड़े करके बोरी में डाल के उनके हॉस्पिटल के सामने फेंक दिया, उन लोगों के इंटरव्यूज करके, उन लोगों की दास्तानों को मैंने ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक शब्द मैंने अपने दिमाग से नहीं लिखा है। एक शब्द अगर इसमें कोई बता दी ये फिल्म विवेक अग्निहोत्री का है तो मैं चैलेंज, सब ये वहाँ से आया है जो इसके विक्टिम्स हैं, एक ऑनेस्ट लेवल पे। मुझसे, मैं अमेरिका में था, मुझसे किसी ब्लैक ने नहीं पूछा ये फिल्म क्यों बनाई है, मुझसे किसी वाइट ने नहीं पूछा, ना डेमोक्रेट्स ने पूछा, ना रिपब्लिकन्स ने पूछा, ना जर्नलिस्ट ने पूछा, किसी विदेशी ने मुझसे आज तक नहीं पूछा कि ये फिल्म आपने क्यों बनाई। कि आप स्पीलबर्ग से कभी पूछेंगे साहब आपने ये शिंडलर्स लिस्ट क्यों बनाई है? पर हिंदुस्तान में मैं जहाँ भी जाता हूँ, जो भी जर्नलिस्ट मुझसे बात करता है, आम जनता जनार्दन का आदमी बात करता है कि साहब आपने ये क्यों बनाया है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ आदित्य जी। हम लोगों के दिमाग को जैसे धीरे धीरे वहाँ राजस्थान में छोटा छोटा अफीम कर करके आदमी को इतना सुस्त कर देते हैं कि उसको पता ही नहीं चलता उसे दर्द हो रहा है कि सुख। इसी तरह हम लोगों ने एक तरह का दिमागों को लोगों के ऐसे बना दिया है जैसे ये इसमें तो फिल्म बननी ही नहीं चाहिए, और मैंने बनाई तो लोग कहते हैं अरे आपने तो बड़ा हिम्मत दिखाई, करेज दिखाई। नहीं, मैंने कोई करेज नहीं दिखाई है। इस पर फिल्में बननी चाहिए अमूमन, इस देश में ऐसी एक नहीं 50 फिल्में बननी चाहिए, हर हादसे पे बननी चाहिए, 1984 के मैसेकर पे बननी चाहिए। सवाल ये है कि हम लोगों ने सच्ची फिल्में दिखाना बंद कर दिया। जैसा खेर साहब ने कहा था, एक डबल स्टैंडर्ड, एक एजेंडा ड्रिवन पे ही फिल्म बनाते हैं और हम उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। एक नैरेटिव को कंट्रोल कर लिया है हम लोगों ने। इसलिए जब कोई सच्ची दिल की बात करता है तो हमें लगता है बहुत अच्छी बात कर रहा है। आज के ज़माने में आप जब किसी अच्छे शरीफ आदमी से मिलते हैं तो आपको आश्चर्य होता है, आपको लगता है जरूर इसका कुछ एक्टिंग कर रहा है, कुछ मकसद होगा इसलिए ये अच्छे बनने की एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि अच्छाई को हमने देखा ही नहीं है, सच्चाई हम सुनना ही नहीं जानते। इसीलिए एक मेरी पुरानी फिल्म में एक डायलॉग था कि लोग सच नहीं, सच की कहानी सुनना जानते हैं। अनुपम जी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसे लोग जो कल्पना भर से सिहर उठते हैं कि रातों रात सर से चार दीवारी या छत छिन जाए, सपने एकदम से छीन लिए जाएं, एक तरीके से कहें तो शिनाख्त छिन जाए और आपको एक फीलिंग आए सेंस ऑफ अबेंडनमेंट की, आप अपने ही देश में, अपने ही राष्ट्र में शरणार्थी बन जाएं, तो क्या जो 19 जनवरी 1990 को हुआ, ये मूवी उन्हें क्लोजर देती है या उन्हें क्लोजर दिखाने की तरफ एक कदम के तौर पर इसे देखा जाए? कुछ भी क्लोजर नहीं दे सकता किसी ट्रेजेडी को। आप अपने आप को संभाल लेते हैं, आप अपने आप को समझाते हैं, लेकिन कभी कभी, अभी शिंडलर लिस्ट की बात की उन्होंने विवेक ने, या जो जूस के साथ हुआ, जो उनका पूरा जो 6 मिलियन जूस मारे गए, उनके ऊपर फिल्में बनी है तो उसमें एक कैथारसिस की फीलिंग आती है कि हमारे साथ कोई जुड़े हुए हैं लोग, कोई हमारी दर्द की कहानी सुनना चाहता है। प्रोफेशनल रोने वाले क्यों होते थे? ताकि, या हमको क्यों ऐसा महसूस हुआ ड्यूरिंग कोरोना वायरस की किसी का कोई मर गया तो हम उसके पास अफसोस करने में नहीं जा पाए। अफसोस करने से क्या होता था, आप बांटते थे थोड़ा सा। मेरे मामा जी ने अपनी पूरी जिंदगी कश्मीर में ओवरसीयर थे, वो काम करके बड़ी मुश्किल से घर बनाया था, बड़ी मुश्किल से। और जब वो घर बन गया और जैसे उन्होंने शिफ्ट किया, उसके थोड़े दिनों बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो गई वहां पर। उनको नया घर बना के कुछ ही महीने हुए थे कि उनको एक फेट की गाड़ी में, फेट कार में जितना सामान वो डाल सकते थे वो डाल के रातों रात निकलना पड़ा। एंड आफ्टर फ्यू इयर्स ही डाइड आउट ऑफ शॉक, माय मदर्स रियल ब्रदर। क्योंकि जब आपको घर से निकाला जाता, आपको ईंटों के, सीमेंट के, लकड़ी के घर से नहीं निकाला जाता, आपको यादों से निकाला जाता है, वहां की आबो हवा से निकाला जाता है, एक खास खुशबू से निकाला जाता है। हमको बैठे बैठे, हम 5 दिन अगर होटल में रहना लग जाते हैं तो हमको लगता है घर की याद आ रही है। हम बाहर विदेश जाते हैं, हमको लगता है अरे यार किसी इंडियन खाना ढूंढते हैं। तो जिन लोगों को पूरी जिंदगी अपने घर में रहने की आदत थी, सिर्फ उनका घर नहीं छिना, उनकी जिंदगी छिन गई, उनकी यादें छिन गई। और ये फिल्म उनको कभी कभी आंसू बहा, कुछ लोग डर से एंटरटेन होते हैं, कुछ लोग हास्य से एंटरटेन होते हैं, कुछ लोग अपने जख्म को रेत कर एंटरटेन होते हैं।
या एंटरटेन वर्ड अगर इस्तेमाल करना है। कुछ लोगों को लगेगा कि हमारा किसी ने साथ दिया। 84 संहार के बारे में क्यों ढूंढते रहे हम इतने सारे लोगों की कि यार एक आदमी तो पकड़ा जाए, एक आदमी को तो सजा हो जाए। उसमें भी ऐसा ही हुआ। ये जो नैरेटिव है ना हमारे देश का, कभी कभी ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। या पीसमेंट वाला, या इसको दबा लेते हैं, इसको छुपा लेते हैं। बट आई फील, आई विल रिक्वेस्ट आपके माध्यम से, दिस इज आवर फर्स्ट मेजर अपील टू द पीपल, और मेजर फंक्शन, जिसमें फंक्शन कह लो या जहां हम अपनी फिल्म की बात कर रहे हैं। आई विल अपील टू द पीपल दैट ऑन 11th of March they should go and support this film, because it is not about Kashmiri Pandits. It is about humanity. It is about goodness. It is about pain. And these are all emotions attached to people. That is why they should watch it. That is why I think people have to. हमारे भी कथारसिस हुए फिल्म में काम करने के बाद। एक फिल्म ऐसी मिल जाए तो उसके बाद 2 साल काम करने का दिल नहीं करता है, क्योंकि लगता है कि कर लिया ये काम। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो आपके माध्यम से अदिति जी, मैं और अर्थ के माध्यम से मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सब लोगों से कि इस फिल्म को जरूर देखें, बिकॉज मकसद ये बहुत जरूरी है कि लोगों को थिएटर में आने के लिए। हमारे पास कोई गाने नहीं है प्रमोट करने के लिए, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सच है दिखाने के लिए, और कभी कभी सच को मिलना बहुत जरूरी होता है। मुझे आपसे इजाजत चाहिए होगी, मैंने आपसे कहा था कि आई विल हैव टू लीव। तो थैंक यू सो मच विवेक, ऑल द बेस्ट। दर्शन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट योर टाइम। दर्शन, जैसा कि आप लगातार सुन रहे हैं, चाहे विवेक जी हों, अनुपम जी हों, कैरेक्टर के लिए, आपके कैरेक्टर के लिए तैयार करना कितना आपके लिए चैलेंजिंग था, स्पेशली जब हम बात एक ऐसे क्राइसिस की कर रहे हैं जो एक ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ क्राइसिस है, जिसमें इमोशनल कैथारसिस है, जिसमें बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारे फीलिंग्स इन्वॉल्व है, और जो रियल है। या एक्चुअली जो मेरा कैरेक्टर है वो आज का यूथ को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे मैंने बताया था कि मैंने पल्लवी जी मैम ने जो मुझे दिखाए थे वीडियोस, उसके बाद सर से मैं मिला था और सर ने मुझे इस फिल्म की स्क्रिप्ट दी, और स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त मुझे हर चीज़ जो मैंने वीडियो में देखी थी एग्जैक्टली वो वहाँ थी। तो आधा काम सर ने कर दिया था, क्योंकि इन्होंने इतना खूबसूरती से उसको अपने डायलॉग्स में और स्क्रीन प्ले में प्रेजेंट किया है कि आपको कहीं बाहर का कुछ लगेगा ही नहीं कि आपने सर ने कुछ ऐड किया है, क्योंकि वो जो वो बोल रहे थे वही डायलॉग्स में था। तो वो आधा मुझे एज एन एक्टर वो बहुत हेल्प किया उस चीज़ ने, क्योंकि मैं सुन चुका था उनके मुंह से। और उसके अलावा जब मैंने जब अपने कैरेक्टर पे काम करना स्टार्ट किया, तो मुझे जो आज का यूथ है जो हर तरफ से कुछ ना कुछ सुनता है, कभी मीडिया से, कभी अगल बगल के लोगों से, तो मीडिया पे भी बिलीव करता है, फिर अपने टीचर्स पे भी बिलीव करता है, अपने माँ बाप पे भी बिलीव करता है, लेकिन कंफ्यूज रहता है कि सच्चाई क्या है। और वो सच्चाई कभी सोचता है कि ये गलत है या मैं सही हूँ, तो उस कंफ्यूजन में है। तो इसके बहुत सारे लेयर्स हैं इस कैरेक्टर्स के अंदर। तो उसको डेवलप करने के लिए जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, और जो बहुत पेनफुल थे, क्योंकि मैंने वीडियोस देखे जो लोग कह रहे थे कि ओपनली मैंने इतने लोगों को मारा, और वो खुले घूम रहे। सो इट वाज सो पेनफुल, और फिर मैं फिर से नम हो रहा हूं, सॉरी, कि ये सब देखने के बाद लगता है कि यार कैसे, मतलब हम इन सबको इग्नोर कर सकते हैं। ये टेररिज्म है, इसके खिलाफ हम सबको खड़ा होना होगा, और वो तब पॉसिबल होगा जब हम एक दूसरे की केयर करेंगे, हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, और इसकी तरफ कुछ तो हमें स्टेप लेना होगा। तो वो असमंजस को पोर्ट्रे करना बहुत टफ था। बट जब मैं प्ले कर रहा था, मुझे सर का बहुत सपोर्ट मिला। हम, जैसे मैं बताया, लिविंग लेजेंड्स हमारे जितने भी थे, मैं कमाल के कलाकारों के साथ काम कर रहा था, वो सब मिला। तो ये जर्नी बहुत ही कमाल की रही, और मैं अपना बेस्ट दे पाया। विवेक जी, इस फिल्म में एक डायलॉग है कि जाएंगे कश्मीर तो सिर्फ अपने घर।
क्या ये घर वापसी मुमकिन दिखती है आपको बीते 3 साल में जो हुआ है, या वो फियर है जिसका जिक्र अभी आपने किया, जिसमें टारगेटेड किलिंग्स हमने देखी हैं बीते ख़ासतौर पर 7-8 महीनों की बात करें तो? देखिए, घर जब हम बोलते हैं तो घर का क्या मतलब है? कई लोगों, जैसे मेरे पिताजी सरकारी उसमें थे, तो ट्रांसफ़र होते थे, अलग अलग शहरों में जाते थे, हर बार एक नया मकान मिल जाता था। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारे घर बदल गए। मकान बदल रहे थे पर घर नहीं बदला था। घर का मतलब होता है जहाँ आप बिल्कुल सिक्योर फील करते हैं, जहाँ आपको कोई जज नहीं करता, जहाँ आप जैसे हैं वैसे रह सकते हैं, जहाँ पे आपको अनकंडीशनल लव और केयरिंग मिलती है, उसे कहते हैं घर। आज ये जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो हम सब लोग अपने अपने घर जाएंगे, राइट? तो वो जो सिक्योरिटी की फीलिंग है, वो जो डायलॉग है, उसका अर्थ ये है कि ऐसे नहीं कि चलो चलो कश्मीर चलो, तुम कश्मीर में रहने लगो। कैसे रहने लगे? 4 बाहर पुलिस वाले या आर्मी वाले बंदूक लेके खड़े होंगे उस तरह से कि आप अपने घर से किराने की दुकान में जाते रहें तो आपको डर लगे, या आपको डर लगे कब मेरे घर में गोलियां चल जाएं या बम फट जाएगा। वो घर नहीं है। घर वो है जहाँ पे आप पूरी तरह सिक्योर फील करें। तो उसका डायलॉग का अर्थ ये है कि ये क्लिनिकल, एक कॉस्मेटिक तरीके से वापस भेजना कश्मीर वो नहीं है कि आओ देखो यहाँ सब अच्छा है, देखिए हज़ारों वो आर्मी वाले खड़े हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आप सिक्योर्ड हैं। नहीं, आप सिक्योर्ड नहीं है, क्योंकि वो सिक्योरिटी फिजिकल है, आप दिमाग और दिल में सिक्योर्ड नहीं है। सो दैट्स व्हाट इट वाज। और जहाँ तक आपकी बात है, जब तक आर्मी से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, आर्मी सिर्फ वारदातों को होने से टाल सकती है, रोक सकती है। ये तब होगा जब सारी दुनिया, इस दुनिया में जितने अच्छे लोग हैं जो ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, जो लोग कंपैशन और एम्पैथी में बिलीव करते हैं, और जिनका जो एंटी वायलेंस है, जब तक वो लोग खड़े होके जो ये शैतानी ताकतें हैं उनके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तब तक घर जाना संभव नहीं है। इस टेररिज्म को पूरी तरह से खत्म करने का एक ही तरीका है कि सिर्फ एक नहीं, कम से कम 130 करोड़ विवेक अग्निहोत्री इस देश में खड़े हो जाएं और उनका विरोध करें। क्या आप इसमें मेजॉरिटी को साइलेंट मानते हैं, जो अभी तक उतनी वोकल नहीं है, जो नैरेटिव्स के वॉर है वो सिर्फ देखती है, वो जानती है सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन एक चुप्पी उसके एंड पे होती है और आप चाहते हैं कि उसको वोकल होना होगा, देन इट विल चेंज? हाँ, देखिए, आर्ट का जो मकसद है वो बेसिकली, चाहे आप कुछ भी बोलें, एंड इंडिया में पता नहीं किसी ने वो डायलॉग डाल दिया तो सब लोग हाँ एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी चलता है, ऐसा नहीं है। तो एंटरटेनमेंट तो देखिए, जो बंदर मदारी जो बंदर को करता है वो भी एंटरटेनमेंट ही है एक तरह से, वो भी सर्कस ही है। सर्कस भी तो एंटरटेनमेंट ही है, लेकिन हम उसको आर्ट नहीं मानते। पर हम जो करते हैं, हम जो फिल्म बनाते हैं वो आर्ट है, उसमें क्राफ्ट इन्वॉल्व है, एक्टिंग इन्वॉल्व है, एक सेंसिबिलिटी इन्वॉल्व है। और आर्ट का मकसद है लोगों को जागरूक करना, हंसाते हुए, रुलाते हुए, किसी भी तरह से उनको एक दिशा दिखाना, वो उसका मकसद है। तो ये जो फिल्म है ये बेसिकली लोग सोते हुए लोगों को जगाने का काम करेगी। डेफिनेटली आई कैन गारंटी दैट। ये इसमें मेरे को बिल्कुल संदेह नहीं है। और अगर इसके बाद भी अगर किसी के क्या बोलते हैं जूं नहीं रेंगता, तो फिर तो उसका ईश्वर भी भला नहीं कर सकता है, हम क्या करेंगे। लेकिन ये जो है ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, एक तबका हमेशा करता है ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटी का, ये एक झूठा आडंबर उनने क्रिएट किया है शब्दों के जाल में फंसाने का। सवाल ये नहीं होना चाहिए ह्यूमैनिटी होने से क्या होता है, वो तो सब जानते हैं। सवाल ये उठना चाहिए कि एब्सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी जब होती है तब क्या होता है। ह्यूमैनिटी होती तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, लेकिन जब ह्यूमैनिटी नहीं होती है उसका नतीजा क्या होता है, ये आप इस फिल्म में देखेंगे। अच्छा, आपके खिलाफ क्या कोई फतवा भी आया इस मूवी को लेकर? इसके रिलीज़ को क्यों टालना पड़ा? और एक बहुत शॉर्ट में, क्या लता मंगेशकर जी गाने वाली थी? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में आपके हवाले से कहा गया कि इसमें आपने जो तीनों बातें कही उनमें से 2 सत्य हैं। फतवे वाली बात सत्य है, धमकियों वाली बात सत्य है, लेकिन फिल्म उस कारण से पोस्टपोन नहीं की गई। फिल्म एक बार जब हम था तो कोविड हो गया, दूसरी बार हमने 26 जनवरी अनाउंस किया तो फिर ये ओमिक्रॉन का वेव आ गया, और अभी जो 11 मार्च को कर रहे हैं
तो वो फिल्म रिलीज़ ना हो उसके लिए मुझे बहुत तमाम दुनिया भर की बहुत ही इंटेंस थ्रेट्स और वो सब चल रही हैं, जिसके चलते मैंने अपना ट्विटर का अकाउंट भी डीएक्टिवेट किया था क्योंकि वो बहुत इम्पॉसिबल हो गया था। लेकिन आई कैन नॉट बी साइलेंस्ड, नोबडी कैन साइलेंस मी। आप जानती हैं इस बात को, मुझे कई साल से जानती हैं। और बल्कि मैं तो जो साइलेंट लोग हैं उनके बिहाफ पे बोलना चाहता हूँ। पर जो साइलेंट मेजॉरिटी है, आप सत्य कह रही हैं, साइलेंट मेजॉरिटी बेचारे उसी क्या है, सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, वो लोग थोड़ी एक्टिविज्म कर सकते हैं। किसी की माँ जो हाउस मेकर है वो थोड़ी एक्टिविज्म कर सकती हैं। तो उस मेजॉरिटी को भी आवाज़ चाहिए, जो आवाज़ मीडिया से, न्यूज़पेपर से, इंटेलेक्चुअल से, आर्टिस्ट लोगों के ज़रिए आनी चाहिए। अफसोस की बात यह है कि 70 साल में हमने लोगों को खामोश होना सिखाया है, अपने दिल की बात बोलना नहीं सिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन, आपने टाइम निकाला। वी रियली अप्रिशिएट दिस एंड योर इनसाइट्स इनटू दिस। थैंक यू सो मच। Thank you.